show. With every letter, watch us grow. Clap your hands and sing along. The alphabet makes us strong. E is for elephant, big and grand, with a long trunk and feet that stand. F is for fish, swimming fast in the water. They're having a blast. G is for giraffe, so tall and proud, reaching the tree, standing in the crowd. H is for hat we wear on our head, colors and shapes, yellow or red. E, F, G, H, so much fun, learning letters one by one. We clap, we sing, we shout out loud. Let's keep learning, we're feeling proud. I is for ice cream, cold and sweet, a summer treat, oh what a feat. J is for jump up to the sky, reach up high, give it a try. K is for kite, flying so high, dancing and twirling in the sky. L is for lion, roaring with might, king of the jungle, what a sight. I, J, K, L, letters galore. Learning is fun, let's do some more. With every letter we're growing bright. The alphabet makes the world so right. M is for moon, shining at night, glowing up high, what a beautiful light. N is for nest, where birds lay, a cozy place where they stay. O is for octopus, 8 arms to wave, in the deep sea, they're so brave. P is for penguin, waddling around, sliding on ice without a sound. M, N, O, P, look and see, all these letters are fun and free. Sing them out loud, let's dance along, our alphabet journey is going strong. Q is for queen, wearing a crown, ruling her kingdom without a frown. R is for rainbow, colorful and bright, after the rain, what a lovely sight. S is for sun, shining all day, warming the earth in a golden ray. T is for tree, tall and green, branches and leaves so serene. ST, letters so cool, learning them makes us feel like school. With every word we grow and grow, the alphabet's magic, now we know. U is for umbrella, keeping us dry when the rain falls from the sky. V is for violin, playing a tune, sweet melodies under the moon. W is for whale, swimming in the sea, the largest animal, wild and free. X is for xylophone, play it with glee, tapping the keys makes music, wee. Y is for yo-yo, up and down, spinning around in every town. Z is for zebra, black and white, running in stripes, what a sight. U, V, W, X, Y, Z, sing it out loud, dance with me, A to Z. We love the animals, big and small. Come on, let's name them, we love them all. From the jungle to the park to our own backyard, let's meet the animals, it's not too hard. Lion, lion, king of the land, roaring so loud, oh, isn't he grand? Strong and brave with a golden mane. Lion, lion, he's never plain. We love the animals, big and small. Come on, let's name them, we love them all. Elephant, elephant, big and round, with his trunk he makes a sound, stomping around so gentle and sweet. Elephant, elephant, what a treat. We love the animals, big and small. Come on, let's name them, we love them all. Rabbit, rabbit, hop, hop, hop,
Jumping through the fields, he'll never stop. Fluffy little tail and ears so long. Rabbit, rabbit, let's sing along. We love the animals, big and small. Come on, let's name them, we love them all. Giraffe, giraffe, with a neck so high, reaching for the leaves way up in the sky. Spots on his skin, standing so tall. Giraffe, giraffe, the tallest of all. We love the animals, big and small. Come on, let's name them, we love them all. Dog, dog, wag your tail. Running and playing, follow the trail. Man's best friend, loyal and true. Dog, dog, we love you too. We love the animals, big and small. Come on, let's name them, we love them all. From the lion to the dog, they're all so great. Let's love the animals, don't hesitate. We love the animals, big and small. Come on, let's sing, we love them all. एक समय की बात है, एक शांत और सुंदर गांव के पास हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटे से ड्रैगन का घर था। उस छोटे से ड्रैगन का नाम अनमोल था। अनमोल के माता पिता बड़े और शक्तिशाली ड्रैगन थे, लेकिन अनमोल अब तक उड़ना नहीं सीख पाया था। वह बाकी ड्रैगनों की तरह बड़े बड़े करतब नहीं दिखा सकता था। अनमोल इससे बहुत निराश रहता था, क्योंकि सभी उसके उड़ने का मजाक उड़ाते थे। अनमोल के दिल में एक ही सपना था, वह भी एक दिन बड़े ड्रैगनों की तरह ऊंचे आसमान में उड़ सके। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी डर। वह बहुत डरता था कि अगर वह उड़ने की कोशिश करेगा तो वह गिर जाएगा। अनमोल को नहीं पता था कि उड़ने के लिए ताकत से ज्यादा साहस की जरूरत होती है। एक दिन गांव में अचानक एक भयंकर आग लग गई। सभी जानवर और लोग मदद के लिए इधर उधर भागने लगे। गांव के पास बहने वाली नदी का पुल भी आग की चपेट में आ गया। अब गांव वालों के पास आग से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अनमोल ने देखा कि उसके माता पिता और दूसरे ड्रैगन दूर थे और तुरंत मदद करने नहीं आ सकते थे। गांव वाले और उनके छोटे बच्चे आग में फंसे हुए थे। अनमोल को लगा कि अब उसे कुछ करना होगा। डरते हुए भी अनमोल ने साहस जुटाया और नदी के उस पार उड़ने का फैसला किया, ताकि वह दूसरी ओर से गांव वालों को बचाने में मदद कर सके। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को दरकिनार किया और पहली बार अपने पंख फैलाए। वह कांपते हुए उड़ने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगा कि उसके पंख उसे उठा रहे हैं। धीरे धीरे वह आसमान में ऊंचा उठने लगा। अनमोल ने जल्दी से उड़ते हुए नदी पार की और वहां मौजूद बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी में डाल दिया, जिससे गांव वालों के लिए एक अस्थायी पुल बन गया। गांव वाले उस पुल से सुरक्षित नदी पार कर गए और आग से बच गए। अनमोल की इस हिम्मत और समझदारी ने सभी को बचा लिया। जब उसके माता पिता और दूसरे ड्रैगन लौटे तो उन्होंने अनमोल की बहादुरी की कहानी सुनी और उसे गर्व से देखा। अनमोल ने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत और साहस अंदर से आता है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर था। कहानी की सीख, साहस का मतलब यह नहीं कि डर न हो, बल्कि इसका मतलब है कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत हो। हमें अपने डर को पार करके खुद पर विश्वास करना चाहिए और तभी हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। Up in the sky so big and bright, here comes a dragon, oh what a sight. Flames that sparkle, wings that soar, he's flying fast and asking for more. Through the clouds with a mighty roar, he dances and twirls forevermore. Dance, dance, little dragon, fly so high, flapping wings as you touch the sky. Twirl, twirl, spin around, feel your feet lift off the ground. With a roar and a leap, you're on your way, flying through the skies all day. Way through the skies all day. Sparkle flame lights up the night, her rainbow flame so bold and bright. She flicks her tail, gives a swirl, lighting up the world like a magical pearl. She laughs, she spins, and colors that glow. Sparkle flames dance is a beautiful show.
gentle, strong, and kind. Helping others is always on his mind. He stomps, he jumps with a crack and a boom. Thunder claws and shakes the room. Dance, dance, little dragon, fly so high, flapping wings as you touch the sky. Twirl, twirl, spin around, feel your feet lift off the ground. With a roar and a leap, you're on your way, flying through the skies all day. Way through the skies all day. A whisker flies faster than the breeze, swooping through the tops of the trees. With wings so light like feathers of blue, she dives and flips through the sky so true. She loops, she glides with grace in her flight. Sky whisker gets through the day and night. Fluff tail bounces with joy and glee. Her laughter echoes from tree to tree. Her soft fluffy tail wags as she spins. She giggles and plays where the fun begins. Her steps are light as she passes along. Fluff tail's dance is full of song. Dance, dance, little dragon, fly so high, flapping wings as you touch the sky. Twirl, twirl, spin around, feel your feet lift off the ground. With a roar and a leap, you're on your way, flying through the skies all day. Flying through the skies all day. Through the skies all day. The skies all day. Glowing glows in the midnight sky, her wings shining bright as stars fly by. Colors of pink, blue, green, and gold. Her dance is a sight of wonder to behold. She spreads her wings light in the dark. Glowing dance leaves a magical spark. Dance, dance, little dragon, fly so high, flapping wings as you touch the sky. Twirl, twirl, spin around, feel your feet lift off the ground. With a roar and a leap, you're on your way, flying through the skies all day. Dragons, don't be shy, let's all dance as we touch the sky. Fly through the clouds, bright and free, with the dragon crew, just you and me. The dragon dance goes on and on, in the sky from dusk to dawn. Flying through the skies all day. Wait, don't go. जंगल में रहते हैं जानवर प्यारे, सभी हैं अच्छे सबसे न्यारे। चलो मिले हम सबसे पहले, मस्ती करे सब साथ में खेले। धम 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 ढोल बजाए, जानवरों के साथ नचें गाए। हाथी, शेर, बंदर और गाय, चलो सभी मिलकर धूम मचाए। राजा बड़ा ही भारी, सूंड उठाए नाचता प्यारा। धीरे धीरे चलता है वो, सबके दिल में बसता है वो। धम 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 ढोल बजाए, जानवरों के साथ नचें गाए। हाथी, शेर, बंदर और गाय, चलो सभी मिलकर धूम मचाए। शेर है राजा जंगल का, दहाड़े जोर से मस्ती में झूमता। पर दिल से वो है बड़ा दोस्त, खुश रखता है सभी को रोज। बंदर मियान मस्त है प्यारे, पेड़ों पे कूदन हो जाए निडर। चाहे आम हो या केला, बंदर को सब फल लगते खेला। धम 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 ढोल बजाए, जानवरों के साथ नचें गाए। हाथी, शेर, बंदर और गाय, चलो सभी मिलकर धूम मचाए। गाय मुंह में घास चबाती, मधुर दूध सबको पिलाती। शांत और प्यारी वो है, सबके मन में बसती है। सभी जानवर मस्त है यार, सिखाते हैं हमें प्यार। चलो मिलकर खेले हम सब, दोस्ती का बाटे ये सबक। धम 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 ढोल बजाए, जानवरों के साथ नचें गाए। हाथी, शेर, बंदर और गाय, चलो सभी मिलकर धूम मचाए। चलो चले अल्फाबेट की राइड, एक एक लेटर हम सीखे साइड बाय साइड। एक एक कर गाएंगे और खेलेंगे, हर लेटर का मतलब आज समझेंगे। ऐसे एप्पल लाल और मीठा, जूसी और
जबरदस्त ट्रीट है। डी से बॉल हम चलते और फीकते, रोलिंग और बाउंसिंग चलो इसको चलाएं। सी से कैट सॉफ्ट और क्यूट, पर्रिंग और प्लिंग अपनी फ्लफी सूट। डी से डॉग भाव भाव भाव, पार्क में दौड़ता जंपिंग झांको। ए बी सी डी लेटर्स हम जाने हर एक लेटर से हम बड़े और पाए। ताल बजाओ हाथ से ताली बजाओ, अल्फाबेट हम सबको मजबूत बनाए। ए से एलिफेंट बड़ा और शानदार, लंबी सूंड और मजबूत पाँव है यार। ओ से फिश तेज तीर लेती, पानी में मजा करती क्या मस्ती। जी से गिराई न लंबा और गौरवशाली, पेड़ों तक पहुंचता सब में खुशहाली। ऐसे हाथ जो हम पहनते सर पे, रंग और आकर पीला या लाल से। ई एफ जी एच इतना मजेदार, हर एक लेटर एक एक करके सीखे यार। हम ताली बजाए गाए जोर से, सीखना मजा है ये हम मान ले। इसे आइसक्रीम ठंडी और मीठी, गर्मी में खाएं वाह कितनी बड़ी ट्रीट है। जैसे जंप ऊपर आसमान तक ऊंचा पहुंच, एक बार करके देख। जैसे कीते आसमान में उड़ती, नचती और घूंघरती हवा में छुपी। ऐसे लायन दहड़ता शान से, जंगल का राजा क्या भारी नजर है। आई जे के एल कितने लेटर्स हैं जबरदस्त, सीखना कितना मजेदार, करो और ज्यादा ट्रस्ट। हर एक लेटर के साथ हम चमक रहे हैं, अल्फाबेट दुनिया को रंगीन बनाए। मन से मून रात को चमकता, ऊंचे आसमान में रोशनी साथ लाता। एन से नेस्ट जहाँ परिंदा रहे गरम और कोजी, यही तो बैठे। ओ से ऑक्टोपस आठ हाथ हिलाता, गहरे समुंदर में क्या हिम्मत दिखाता। पी से पेंगुइन वादल करते चलते बढ़ते, स्लाइड करते बिना शोर के। एम एन ओ पी देखो और सीखो, इतने सारे लेटर्स मजा आता फ्री हो। गाओ जोर से नाचो साथ में, अल्फाबेट का सफर जोरदार चल रहा है। क्यू से क्वीन सर पे ताज पहनती, अपने राज्य को बिना मुस्कान के चलाती। आर से रेनबो रंगों का मेला, बारिश के बाद कितना प्यारा नजारा है। ऐसे सुन दिन भर चमकता, जमीन को गर्म करता सुनहरे रंग से। टी से ट्री लंबा और हरा, शाखों और पत्तों का शांत संसार। क्यू आर एस टी लेटर्स है कूल, सीखना कितना मजेदार लगता स्कूल। हर एक शब्द के साथ हम बड़े और बड़े, अल्फाबेट का जादू अब हम समझ गए। यू से अम्ब्रेला जो हमें सुखाता, जब बारिश आती है तब ये बचाता। वी से वायलिन जो बजाता सुरीला की मीठी धुनों के साथ चांदनी रात में। तभी से वेब समुंदर में तैरती, सबसे बड़ी जानवर बिल्कुल आजाद है। ताली मारो कीज पे कितनी रौनक बनता है। यू से यो यो ऊपर और नीचे घूमता रहता, हर जगह हर शहर में। जी से ज़ीब्रा काली सफेद धारी दौड़ता रहता, क्या नजर यारी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक सुंदर हरे भरे जंगल में एक युवा ड्रैगन ध्रुव रहता था। ध्रुव अभी छोटा था और अपनी लपटों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता था। जैसे ही उसे गुस्सा आता, उसकी छोटी सी नाक से छोटी छोटी लपटें निकलने लगती। ध्रुव एक खुशमिजाज ड्रैगन था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए तैयार रहता। उसकी सबसे प्यारी दोस्त नीला नाम की एक छोटी चिड़िया थी, जो हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करती थी। नीला जानती थी कि ध्रुव को अपनी लपटों पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो एक दिन बड़ा नुकसान हो सकता था। एक दिन ध्रुव और उसके सारे दोस्त जंगल में खेलने गए। वे सभी एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक एक छोटा गिलहरी दौड़ता हुआ आया और ध्रुव के ऊपर गिर गया। ध्रुव को बहुत गुस्सा आया।
और उसकी नाक से एक छोटी सी लपट निकलकर पास के सूखे पत्तों पर जा गिरी। पत्तियां तुरंत आग पकड़ने लगी। ध्रुव घबरा गया और सोचने लगा, अब क्या करूं? मैंने यह कैसे कर दिया? उसके सभी दोस्त इधर उधर भागने लगे, लेकिन नीला शांत थी। उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव, अभी तुम्हें अपना गुस्सा छोड़कर धैर्य से काम लेना होगा। अपनी लपटों पर नियंत्रण रखना सीखो, तभी तुम इस आग को रोक पाओगे। ध्रुव ने गहरी सांस ली और अपनी लपटों को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने अपनी नाक से धीमी धीमी हवा छोड़ी और अपनी लपटों को कम किया। उसके दोस्तों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव का गुस्सा उसे नियंत्रित नहीं करने दे रहा था। फिर नीला ने कहा, ध्रुव, याद करो जब तुम खेल में हार गए थे, तब तुमने कैसे गहरी सांसें ली थीं। क्या तुम एक बार फिर से कोशिश कर सकते हो? ध्रुव ने नीला की बात पर ध्यान दिया और फिर से गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और शांत होने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी लपटें कम होने लगीं। अब ध्रुव ने अपनी पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाकर आग पर फेंकना शुरू किया। उसकी लपटें अब पहले से कम थीं। सभी दोस्त उसके इर्द गिर्द खड़े थे और उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। ध्रुव ने अपनी लपटों को और धीमा किया और अपनी ताकत से आग को बुझाने में जुट गया। जब ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो उसकी लपटें जलती हुई पत्तियों पर गिरी और आग को और भी कम कर दिया। उसके सारे दोस्तों ने मिलकर आग को पूरी तरह से बुझाने में उसकी मदद की। नीला, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसके पास आकर बोली, ध्रुव, तुमने यह कर दिखाया। तुमने अपनी लपटों को नियंत्रित करना सीख लिया। ध्रुव ने राहत की सांस ली और कहा, हाँ, मैंने समझा कि गुस्से में आकर कुछ करना कितना खतरनाक हो सकता है। मुझे अपनी लपटों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। नीला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ध्रुव, अगर तुम अपने गुस्से और लपटों को नियंत्रित करोगे तो तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। लेकिन शक्ति तभी अच्छी होती है जब हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। उस दिन से ध्रुव ने धैर्य और आत्मनियंत्रण का अभ्यास शुरू किया। अब जब भी उसे गुस्सा आता, वह गहरी सांसें लेता और शांत रहता। उसकी लपटें अब दूसरों के लिए कोई खतरा नहीं थी, बल्कि उसकी मददगार बन गईं। धीरे धीरे ध्रुव ने अपने दोस्तों को बताया कि कैसे उसने अपनी लपटों पर नियंत्रण पाकर उन्हें सुरक्षित रखा। उसने कहा, मेरी लपटें अब केवल रोशनी लाने का काम करती हैं। अब जब मैं खुश होता हूँ तो मेरी लपटें इंद्रधनुष की तरह चमकती हैं। उसकी कहानी जंगल में फैल गई। अब ध्रुव जंगल का सबसे पसंदीदा और समझदार ड्रैगन बन गया। बच्चे उसे देखकर कहते, ध्रुव को देखो, वह अपनी लपटों के साथ खेलता है पर कभी भी नुकसान नहीं करता। शिक्षा, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से या हड़बड़ी में कुछ करना हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें। धैर्य और आत्मनियंत्रण हमारे जीवन में every kid's dream. She's lit and bright, her rainbow flames shine day and night. She doesn't burn, she's here to play, lighting up the world in her special way. With a twirl and a swirl, her sparkles gleam. Sparkle Flame's magic is every kid's dream. Next comes Skylister, smooth and fast, soaring through the skies like a rocket blast. Feathered wings, light as air, she zooms through clouds without a care. She spins, she dips with a whoosh and a dive. Sky Whisker speed makes the skies alive. Then there's Flufftail, soft as a cloud, with a bounce in her step and a laugh so loud. Her fluffy tail sways, her eyes shine bright, playing all day, cuddling all night. She's sweet, she tempts full of joy and cheer. Flufftail's the friend everyone wants near. Thunderclaw
stars roar makes the mountains shake, with lightning strikes and a thunderquake. But don't be scared, he's bold and strong, protecting his friends all day long. He's got claws of steel and a heart of gold. Thunderclaw's adventures are epic and bold. And then there's glowing, glowing so bright, lighting up the stars with her rainbow light. Her wings spread wide, shining colors galore. Glowing's beauty leaves you wanting more. She dances in the dark, glowing up the sky. Glowing's light makes the nighttime fly. Sparkle flame sky whisker lighting up the day. Fluff tail thunderclaw leading the way. Glowing shining up so high, 5 awesome dragons ruling the sky. So here's the crew, cool and fly. 5 red dragons who reach the sky. They teach us fun, they teach us might. With their magic, everything feels right. Come join the team, let's go explore. With the dragon crew, there's always more. Sparkle flame sky whisker lighting up the day. Fluff tail thunderclaw leading the way. Glowing shining up so high, 5 awesome dragons ruling the sky. एक समय की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही होशियार था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह हमेशा अपने काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता था। चाहे वह स्कूल का काम हो, घर का काम हो या दोस्तों के साथ खेलना, वह हर चीज में जल्दबाजी करता था। उसे लगता था कि जल्दी काम करने से वह बाकी समय खेलने में बिता सकेगा। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता थी एक मिट्टी का सुंदर बर्तन बनाने की। प्रतियोगिता के विजेता को एक बड़ा इनाम मिलने वाला था। गोपाल को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसे मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पसंद था। उसने तुरंत प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता के दिन सभी बच्चों को मिट्टी दी गई और उन्हें बर्तन बनाने का समय दिया गया। गोपाल ने सोचा, अगर मैं जल्दी जल्दी बर्तन बना लूंगा तो बाकी बच्चों से पहले मेरा काम पूरा हो जाएगा और मुझे जीतने का ज्यादा मौका मिलेगा। यह सोचकर उसने तेजी से मिट्टी को आकार देना शुरू किया। उसने जल्दी जल्दी अपना बर्तन तैयार कर लिया, लेकिन जल्दबाजी में उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका बर्तन ठीक से नहीं बना था। बर्तन की सतह पर दरारें थीं और उसकी शक्ल भी अजीब थी। लेकिन गोपाल को लगा कि उसने सबसे पहले काम पूरा कर लिया है, इसलिए वह जरूर जीत जाएगा। जब निर्णायक आए और सभी बच्चों के बर्तनों को देखा, तो उन्होंने गोपाल का बर्तन देखकर कहा, गोपाल, तुमने काम तो बहुत जल्दी कर लिया, लेकिन यह बर्तन ठीक से नहीं बना है। इसमें दरारें हैं और यह मजबूत भी नहीं है। गोपाल को यह सुनकर बहुत निराशा हुई। फिर निर्णायकों ने उन बच्चों के बर्तन देखे जिन्होंने धीरे धीरे और ध्यान से काम किया था। उन बच्चों के बर्तन सुंदर, मजबूत और बिल्कुल सही थे। आखिरकार एक दूसरे बच्चे को इनाम मिल गया, जिसने बिना जल्दबाजी किए धैर्यपूर्वक काम किया था। गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैं जल्दीबाजी न करता और ध्यान से काम करता तो मेरा बर्तन भी अच्छा बनता। जल्दी का काम हमेशा सही नहीं होता। उस दिन के बाद से गोपाल ने एक सीख ली, हर काम को ध्यान और धैर्य से करना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करने से गलतियां हो जाती हैं। शिक्षा, जल्दी का काम शैतान का होता है। किसी भी काम को ध्यान और धैर्य से करने पर ही। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से तालाब में मिट्ठू नाम का मेंढक रहता था। वह बहुत प्यारा और मासूम था, लेकिन उसकी एक कमी थी, वह ऊंची छलांग नहीं लगा पाता था। मिट्ठू के सभी दोस्त, जैसे खरगोश किट्टू, गिलहरी गुड़िया और कछुआ टिम्मी, तेज और फुर्तीले थे। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, तुम तो ठीक से छलांग भी नहीं लगा सकते, दौड़ में कैसे जीतोगे। दौड़ की घोषणा। एक दिन जंगल में एक बड़ी दौड़ की घोषणा हुई। यह दौड़ जंगल के सबसे तेज और बहादुर जानवर को चुनने के लिए थी। दौड़ जीतने वाले को जंगल का सबसे बहादुर का खिताब दिया जाता। सभी जानवर इस दौड़ में भाग लेने के लिए उत्साहित थे। मिट्ठू भी इस दौड़ में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे हतोत्साहित किया। गिलहरी गुड़िया ने हंसते हुए कहा, तुम इस दौड़ में क्या करोगे, तुम तो पहले ही गिर जाओगे। मिट्ठू का दिल दुखी हो गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ,
मैं भी इस दौड़ में भाग लेना चाहता हूँ। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जरूर भाग लो बेटे। हमेशा याद रखना, जीतने से ज्यादा जरूरी है कोशिश करना। दौड़ का दिन आ गया। जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए थे। हिरण, खरगोश, लोमड़ी जैसे तेज जानवर दौड़ के लिए तैयार थे। मिट्ठू ने भी अपनी हिम्मत जुटाई और दौड़ में शामिल हो गया। सभी जानवर उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन मिट्ठू ने किसी की परवाह नहीं की। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, सभी जानवर तेजी से दौड़ने लगे। मिट्ठू धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ रहा था। वह सबसे पीछे था, लेकिन उसने अपनी माँ की बात याद रखी और लगातार दौड़ता रहा। मुश्किल चुनौती कुछ दूरी पर एक बड़ी खाई आई। सभी तेज जानवरों ने छलांग लगाकर उसे पार कर लिया, लेकिन जब मिट्ठू वहां पहुंचा तो उसे लगा कि वह इसे कभी पार नहीं कर पाएगा। वह डर गया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा। मिट्ठू ने पहली छलांग लगाई और गिर गया। उसने दूसरी बार कोशिश की, फिर भी असफल रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी बार उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और आखिरकार खाई को पार कर गया। मिट्ठू खुश हुआ, लेकिन वह जानता था कि दौड़ अब भी खत्म नहीं हुई है, इसलिए उसने फिर से दौड़ना शुरू किया। अंत में जीत कुछ जानवर रास्ते में ही थक गए थे, जबकि मिट्ठू धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहा। जब वह फिनिश लाइन पर पहुंचा तो उसे देखकर सब हैरान थे। भले ही वह पहला नहीं था, लेकिन वह उन चंद जानवरों में से था जिन्होंने दौड़ पूरी की थी। जंगल का राजा शेर बहुत प्रभावित हुआ और उसने मिट्ठू को बुलाकर कहा, आज तुमने हमें सिखाया है कि असली जीत कोशिश में होती है, न कि सिर्फ पहले आने में। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी कभी हार न मानने में है। सीख मिट्ठू की मेहनत और हिम्मत को देखकर सभी जानवरों ने उसकी तारीफ की। जो जानवर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने भी उससे माफी मांगी और कहा, तुम सच में बहादुर हो मिट्ठू। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार कोशिश करते हैं। चैनल को लाइक। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रमेश के पास एक प्यारा सा कुत्ता था जिसका नाम टॉमी था। टॉमी बहुत नन्हा और मासूम था, लेकिन उसकी वफादारी पर पूरे गांव को गर्व था। वह रमेश का सबसे अच्छा दोस्त था और हर समय उसके साथ रहता। जब भी रमेश खेत में काम करने जाता, टॉमी उसके साथ जाता और उसकी मदद करता, चाहे वह कितना भी थक गया हो। रमेश अक्सर कहता, टॉमी, तू तो मेरा सबसे अच्छा साथी है, तेरे बिना मैं क्या करूँगा। टॉमी अपनी पूंछ हिलाता और रमेश के आसपास खेलता, जैसे कह रहा हो कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन रमेश बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वह अपने खेतों में काम करने नहीं जा सकता था। खेतों में काम न हो पाने की वजह से फसल खराब होने का खतरा था। रमेश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ चिंता में डूबा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। टॉमी ने देखा कि उसका मालिक उदास और परेशान है। वह तुरंत रमेश के पास आया और उसके पैर के पास बैठ गया, जैसे पूछ रहा हो, क्या हुआ। रमेश ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, टॉमी, आज मैं खेतों में काम नहीं कर सकता। अगर आज काम नहीं हुआ तो फसल बर्बाद हो जाएगी। टॉमी समझ गया कि उसे कुछ करना होगा। उसके छोटे से दिल में एक बड़ा इरादा पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर मैं अपने दोस्तों को बुला लूं, तो मिलकर हम काम पूरा कर सकते हैं। टॉमी ने बिना वक्त गवाए गांव के सभी जानवरों से मदद मांगी। वह गाय, बकरी, मुर्गियां और दूसरे जानवरों के पास गया और सबको समझाया कि रमेश की मदद करनी होगी। सभी जानवर टॉमी की बात मान गए, क्योंकि वे जानते थे कि टॉमी वफादार और समझदार है। अगली सुबह टॉमी अपने दोस्तों को लेकर खेत पहुंचा। सबने अपने अपने तरीके से खेत में काम करना शुरू किया। गायों ने घास खाकर रास्ते साफ की, बकरियों ने पौधों की देखभाल की और मुर्गियों ने कीड़े मकोड़े पकड़े। टॉमी भी खेत की रखवाली करता रहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई अनहोनी न हो। छोटे से टॉमी ने बड़े जिम्मेदारी से सारा काम संभाल लिया। सारा दिन सभी जानवर मिलकर मेहनत करते रहे। शाम तक खेतों का सारा काम हो चुका था। फसल सुरक्षित थी और रमेश के खेत फिर से हरे भरे दिखने लगे। जब रमेश बिस्तर से उठा
और उसने बाहर जाकर खेतों को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह सब टॉमी और उसके दोस्तों की मेहनत का नतीजा है। रमेश ने टॉमी को गोद में उठाया और उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, टॉमी, तूने आज साबित कर दिया कि तू सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा असली सहारा भी है। तेरी वफादारी और मेहनत ने मेरा खेत बचा लिया। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। टॉमी ने भी रमेश की ओर देखा, अपनी पूंछ हिलाई और खुशी से उछल पड़ा, जैसे कह रहा हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रमेश ने अपने सभी जानवरों का धन्यवाद किया और कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े होते हैं। तुम सबने आज मुझे सिखा दिया कि दोस्ती और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। टॉमी, रमेश और बाकी सभी जानवर खुशी खुशी साथ रहने लगे और टॉमी की वफादारी की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। शिक्षा, सच्ची वफादारी, मेहनत और सहयोग से बड़ी मुश्किलों का हल निकाला जा सकता है। सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल समय में साथ खड़े हो। एक समय की बात है, सागर की गहराई में छोटी सी मछली रहती थी जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत प्यारी थी, पर वह हमेशा सोचती थी कि वह बहुत छोटी है और इतने बड़े सागर में कभी कुछ खास नहीं कर पाएगी। गोलू के दोस्त बड़े बड़े समुद्री जानवर थे, बड़ी मछलियाँ, शार्क और डॉल्फिन जो सागर के दूर दूर तक घूमते और मस्ती करते थे। गोलू को लगता कि वह इन बड़े जानवरों के साथ नहीं खेल सकती क्योंकि वह इतनी छोटी है। एक दिन सागर के अंदर बड़ा तूफान आया। पानी तेजी से घूमने लगा और सभी मछलियाँ इधर उधर भागने लगी। गोलू भी डर गई और एक छोटी चट्टान के पास छिप गई। लेकिन गोलू ने देखा कि उसके बड़े दोस्त चट्टानों के बीच फंस रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी पूंछ और पंख उन्हें तंग जगहों में फंसने से नहीं बचा पा रहे थे। गोलू समझ गई कि उसकी मदद की जरूरत है। गोलू ने अपनी चुस्ती और छोटे आकार का फायदा उठाया। वह जल्दी से तंग जगहों में घुस गई और एक एक करके सभी मछलियों को बाहर निकालने लगी। उसने सबसे पहले बड़ी मछली को बचाया, फिर शार्क और फिर डॉल्फिन। सब हैरान रह गए कि गोलू जैसी छोटी मछली ने इतने बड़े काम कर दिखाए। जब तूफान थम गया, सारे समुद्री जीव गोलू की तारीफ करने लगे। अब गोलू को यह समझ आ गया था कि चाहे वह छोटी हो, लेकिन उसकी हिम्मत और चुस्ती ने उसे बड़ा बना दिया। शिक्षा, छोटे आकार का मतलब यह नहीं कि आप बड़े काम नहीं कर सकते। सही समय पर सही हिम्मत दिखाने से आप भी बड़े काम कर सकते हैं। किसी समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक बुद्धिमान तोता रहता था जिसका नाम था गप्पू। गप्पू अपने अद्भुत ज्ञान और चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह न केवल उड़ान में तेज था, बल्कि उसने कई चीजें सीख रखी थीं। उसका खास दोस्त एक नन्हा गिलहरी था जिसका नाम था चिंकी। एक दिन गप्पू और चिंकी खेलते खेलते जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ जानवर एक बड़े बाघ के पास इकट्ठा हो रहे थे। बाघ बहुत ही दुष्ट था और जानवरों को डराता था। उसने सबको धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह उन्हें खा जाएगा। सभी जानवर डर गए और उनके दिलों में डर समा गया। लेकिन गप्पू ने सोचा कि अगर सब डरते रहेंगे तो बाघ का हौसला और बढ़ जाएगा। उसने चिंकी से कहा, हमें बाघ का सामना करना होगा। हमें उसे बताना होगा कि हम डरने वाले नहीं हैं। गप्पू ने एक योजना बनाई। वह और चिंकी बाघ के पास गए। गप्पू ने अपनी तेज आवाज में कहा, ओ बाघ, तुम जानते हो कि तुम जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अकेले हो? तुम्हारे बिना भी जंगल का जीवन चलता है। बाघ ने गप्पू की बात को सुना और थोड़ा चौंका। उसने कहा, तुम छोटे से तोते को मुझे सिखाने का क्या हक है? गप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा, बल्कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम जानवरों को मारोगे तो तुम अकेले रह जाओगे। सब जानवर मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। चिंकी ने भी कहा, हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और तुम्हारे खिलाफ एकजुट होंगे। यह सुनकर बाघ थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। गप्पू और चिंकी की हिम्मत देखकर बाकी जानवरों ने भी हिम्मत जुटाई और बाघ के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने बाघ को कहा, अगर तुम हमें परेशान करोगे तो हम सब मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। आखिरकार बाघ ने देखा कि अगर वह जानवरों को डराएगा तो उसे अकेले रहना पड़ेगा।
उसने यह समझा कि एकता में बल है और उसने सभी को छोड़ने का फैसला किया। गप्पू और चिंकी की बुद्धिमानी और साहस ने सभी जानवरों को एकजुट कर दिया और बाघ को समझा दिया कि जंगल में सभी का महत्व है। बाघ ने जंगल छोड़ने का फैसला किया और तब से जानवरों ने निश्चिंत होकर जीने लगे। इस तरह गप्पू और चिंकी ने सभी को एकता का महत्व सिखाया और जंगल को एक सुरक्षित स्थान बना दिया। चैनल को Bright sunny meadow where the flowers sway lives a bouncy little bunny hopping all the day. With his floppy ears so long and his tail so white, he loves to bounce and play from morning till night. Bouncing bunny hop, 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 jumping high and never stop through the grassy leaves with glee. Come and join and play with me. One day he met a friend, a turtle slow and sweet. Come and play with me, said Bonnie. Let's have some fun on our feet. But the turtle smiled and said, I'll join you with a smile. I may be slow, but I'll be there. Just give me a little while. Bouncing Bonnie hop, 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 jumping high and never stop through the grassy leaves with glee. Come and join and play with me. So Bonnie bounced and played, and the turtle took his time. They found a sunny spot, perfect for a ride, with daisies all around them and the sky so blue. They sang and danced together, just me and you. Bouncing bunny hop, 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 jumping high and never stop through the grassy leaves with glee. Come and join and play with me. As the sun began to set, painting skies with gold, Bunny and his turtle friend shared stories to be told. Every friend is special, no matter fast or slow. Together we can have fun, just look how we can glow. Oh, dashing bunny hop, 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 jumping high and never stop through the grassy leaves with glee. Come and join and play with me. wait, don't go. एक घने जंगल में एक बड़ा भालू रहता था जिसका नाम भोलू था। भोलू बहुत ही प्यारा और खुश मिजाज भालू था, लेकिन उसके दिल में एक राज था। भोलू को कभी कभी बहुत उदासी महसूस होती थी और उसे समझ नहीं आता था कि खुशी कैसे पाई जाए। एक दिन भोलू ने सोचा कि उसे अपने दोस्तों से मदद लेनी चाहिए। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त बंदर टिंकू को बुलाया। टिंकू हमेशा चंचल और मजाकिया होता था। भोलू ने टिंकू से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे खुशी की एक चाबी चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं खुशी कैसे पा सकता हूँ? टिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी की चाबी तो तुम्हारे अपने दिल में है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ उपाय बता सकता हूँ। भोलू ने कहा, हाँ, मुझे बताओ। टिंकू ने उसे कुछ सुझाव दिए। दोस्ती का महत्व। अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ, दोस्ती खुशी लाती है। सकारात्मक सोच। हमेशा अच्छे विचारों पर ध्यान दो, नकारात्मकता से दूर रहो। छोटी छोटी खुशियां। जंगल की सुंदरता का आनंद लो, जैसे कि सूरज की रोशनी, ताजगी भरी हवा और खिलते फूल। दूसरों की मदद करना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें भी खुशी मिलती है। भोलू ने टिंकू की सलाहों को ध्यान से सुना। उसने तय किया कि वह आज से अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। पहले उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उनके साथ एक पिकनिक का आयोजन किया। सभी ने मिलकर खाने पीने का आनंद लिया और खेल खेले। दूसरे दिन भोलू ने जंगल के चारों ओर घूमते हुए छोटे छोटे अच्छे काम करने की ठानी। उसने एक छोटे से खरगोश की मदद की जो अपने खोए हुए खिलौने को ढूंढ रहा था। भोलू ने उसे उसका खिलौना वापस दिलाने में मदद की और इस पर खरगोश ने उसे धन्यवाद कहा। थोड़े ही समय में भोलू को एहसास हुआ कि उसकी खुशियां बढ़ रही थीं। उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो वह खुद भी खुश होता है। एक दिन जब भोलू जंगल के किनारे बैठा था, उसने देखा कि उसकी खुशियों की चाबी वास्तव में उसके दिल में थी। वह समझ गया कि खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है और जब हम अपने आप को सकारात्मकता में रखते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशियां बढ़ जाती हैं।
सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी की चाबी हमारे भीतर ही होती है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशियों की बौछार होती है। भोलू अब हमेशा खुश रहता था और उसने अपने दोस्तों को भी सिखाया कि खुशी को कैसे पाया जाए। सभी मिलकर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। How is the parrot green with the funny sound? He talks and squawks all day around. Wings so bright, he loves to fly up in the trees, so way up high. Flap, 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 let's fly around with our bird friends up from the ground. Sing and chirp, oh what a sight! Bird friends soaring in the light. A penguin waddles slide on ice. In the snow, he's looking nice. Black and white with a happy grin, he dives in the water and begins to spin. Waddle, 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 slide on the snow. Penguins are ready to put on a show. Flap and swim, oh what a sight, with our bird friends day and night. Owl's awake when the stars are bright, with big round eyes in the quiet night. He hoots and swoops from tree to tree. Wise old owl who can see what we can't see. Hoot, hoot in the dark night, with the wise old owl flying in flight. Big bright eyes, oh what a sight. Let's join Owl, take off tonight. Peacock's feathers spread so wide, a rainbow tail filled with pride. Dancing around in a colorful swirl, with every step his feathers unfurl. Dance, dance, dance with colors so bright. Peacock's tail, what a beautiful sight. Flap and twirl, oh what delight, with our bird friends day and night. Flamingo stands on one long leg. In pink so bright he loves to stretch and peg. By the water he loves to play. In the lake he'll spend the day. Step, 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 so tall and neat. Flamingo's ready with his one pink feet. Stretch and flap, oh what a sight. Join our bird friends in the flight. Up in the sky, let's fly so high. With all the birds, we'll touch the sky. From trees to lakes and snowy lands, we'll follow our feathered friends in bands. With color sings, with colors so bright. Ooh, penguin waddles, what a delight. Owls wise in the dark night. Peacock's feathers shining in light. Flamingos tall with the legs so pink, flying with birds faster than you think. Flap, 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 let's fly around with our bird friends up from the ground. Sing and chirp, oh what a sight. Bird friends soaring in the light. एक घने जंगल में नन्ही चिड़िया चिक्की रहती थी। उसके पंख छोटे थे, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह ऊंचे आसमान में उड़ना चाहती थी। बाकी पक्षी चिक्की का मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तुम्हारे पंख इतने छोटे हैं, तुम कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाओगी। लेकिन चिक्की को यकीन था कि अगर उसने हिम्मत और मेहनत की तो वह भी उड़ सकेगी। एक दिन जंगल में एक प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। सभी पक्षियों को ऊंचाई तक उड़ने की चुनौती दी गई। चिक्की ने ठान लिया कि वह भी इसमें हिस्सा लेगी, लेकिन उसके दोस्त उसे रोकने लगे। तुम्हारे पंख छोटे हैं, ये प्रतियोगिता तुम्हारे लिए नहीं है। चिक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने पंखों से नहीं, हिम्मत से पूरे होते हैं। प्रतियोगिता का दिन, जंगल के सभी बड़े पक्षी उड़ने के लिए तैयार थे। चिक्की भी हिम्मत जुटाकर आई। सीटी बजी और सारे पक्षी आसमान की ओर उड़ चले। चिक्की ने भी कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में गिर गई। उसे लगा कि शायद बाकी पक्षी सही थे, लेकिन तभी
उसने देखा कि उसके पास एक झाड़ी में एक अजीब सी चमक दिख रही है। वह धीरे धीरे उस झाड़ी के पास गई और उसे एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में लिखा था, सच्ची उड़ान दिल से होती है, राज की खोज। चिक्की ने किताब पढ़ते हुए महसूस किया कि उसकी असली ताकत उसके पंखों में नहीं बल्कि उसके दिल में है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में सोचा, मैं उड़ सकती हूँ। अचानक उसकी पीठ से हल्की रोशनी निकली और उसके पंख चमकने लगे। चिक्की ने फिर से उड़ान भरी और इस बार वह हवा में स्थिर रही। धीरे धीरे उसने ऊंचाई पकड़ ली। सभी पक्षी चकित थे कि चिक्की इतनी ऊंचाई पर कैसे उड़ रही है। चमत्कारी उड़ान। चिक्की अब जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ से भी ऊंचा उड़ रही थी। सभी पक्षी हैरान थे और चिक्की को देख रहे थे। वह पहाड़ों के पार बादलों के बीच उड़ने लगी। जंगल के सभी जानवर तालियां बजाने लगे। चिक्की ने अपनी उड़ान से साबित कर दिया कि सपने कितने भी बड़े हों, अगर दिल में विश्वास हो तो उन्हें पूरा किया जा सकता है। कहानी का नैतिक, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि सच्ची उड़ान। घने जंगल में एक बड़ा और मजबूत हाथी मोटू रहता था। उसकी लंबी सूंड और विशालकाय शरीर से सभी जानवर डरते थे। मोटू को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर छोटे जानवरों को अपनी सूंड से उठाकर इधर उधर फेंक देता और मजे लेता। उसे लगता था कि छोटे जानवर उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। एक दिन जंगल में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सभी जानवर बहुत उत्साहित थे। प्रतियोगिता में चुनौती यह थी कि जो भी जानवर सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहले चढ़ेगा, उसे जंगल का सबसे तेज और चतुर जानवर माना जाएगा। सभी जानवर इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए, लेकिन मोटू को पूरा यकीन था कि वह ही जीतने वाला है। उसका विशाल शरीर और लंबी टांगें उसे आसानी से जीत दिला देंगी। छोटी चींटी चिंकी भी प्रतियोगिता में भाग लेने आई। सभी जानवर हंसने लगे और बोले, तुम इतनी छोटी हो, तुम कैसे इस पहाड़ी पर चढ़ोगी? मोटू तो तुम्हें पल भर में हरा देगा। लेकिन चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपनी छोटी कद और धीमी चाल से फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मेहनत और धैर्य से जरूर सफल होंगी। प्रतियोगिता शुरू हुई। मोटू तेजी से अपनी विशालकाय टांगों से पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वह हर कदम में आत्मविश्वास से भरा था। दूसरी तरफ चिंकी धीरे धीरे चढ़ने लगी, लेकिन बिना रुके। जैसे ही मोटू पहाड़ी के आधे रास्ते पर पहुंचा, उसे गर्मी और थकान महसूस होने लगी। उसने सोचा, मुझे आराम करना चाहिए। मैं तो सबसे आगे हूँ, बाकी जानवर मुझे कभी नहीं हरा सकते। और वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। उधर चिंकी बिना रुके धीरे धीरे चढ़ती रही। वह छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और धैर्य उसे लगातार आगे बढ़ाते रहे। मोटू को लगा कि वह अब भी आगे है, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि चिंकी पहाड़ी के शिखर के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। मोटू घबरा गया और तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। चिंकी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई और जीत गई। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और चिंकी को बधाई दी। मोटू शर्मिंदा था, लेकिन उसने चिंकी की जीत को स्वीकार किया। उसने समझा कि ताकत से ज्यादा मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी कितना भी बड़ा या छोटा हो, अगर वह मेहनत और धैर्य से काम करता है तो वह जरूर सफल होता है। उस दिन से मोटू ने अपने घमंड को छोड़ दिया और जंगल के सभी जानवरों से मित्रता करने लगा। सभी ने मिलकर इस जीत का जश्न मनाया और चिंकी की मेहनत को सराहा। मूल्यांकन। कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत और धैर्य से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं, चाहे हमारा आकार या एक समय की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। राजा शेर को एक पुराना नक्शा मिला जिसमें लिखा था कि जंगल में कहीं एक खजाना छिपा हुआ है। शेर ने यह खबर पूरे जंगल में फैला दी और सभी जानवर उस खजाने की खोज में निकल पड़े। इस जंगल में एक छोटा प्यारा हाथी था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत मासूम और थोड़ा डरपोक था, लेकिन उसमें एक बड़ी खासियत थी, वह कभी हार नहीं मानता था। गोलू भी खजाने की तलाश में निकल पड़ा। उसे पता था कि उसके सामने कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह खजाना ढूंढेगा और अपने दोस्तों की मदद करेगा। खजाने की तलाश में गोलू के साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त टोनी तोता भी था। टोनी बहुत चालाक और तेज था।
और वह गोलू की मदद करता रहता था। दोनों मिलकर जंगल की गहरी घाटियों, ऊंची पहाड़ियों और डरावनी गुफाओं से गुजरे। रास्ते में उन्हें मोटू मगरमच्छ मिला, जो पानी की धारा को रोककर बैठा था। मगरमच्छ ने कहा, अगर तुम लोग खजाना ढूंढने जा रहे हो तो पहले मुझे इस नदी के पार जाने का रास्ता बताओ। गोलू और टोनी ने सोचा, और फिर गोलू ने अपनी सूंड से नदी का एक पेड़ गिराया ताकि मगरमच्छ नदी पार कर सके। मोटू मगरमच्छ ने खुशी खुशी उन्हें जाने दिया और उन्हें रास्ता दिखाया। आगे चलते चलते उन्हें झपकी बिल्ली मिली, जो हमेशा सोती रहती थी। उसने कहा, तुम लोग अगर मेरी नींद में खलल नहीं डालोगे तो मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण रास्ता बता दूंगी। गोलू और टोनी ने बहुत धीरे से उसके पास से गुजरते हुए उसे परेशान नहीं किया, जबकि बिल्ली ने उन्हें जंगल की सबसे खतरनाक गुफा के रास्ते से बचने का तरीका बता दिया। आखिरकार गोलू और टोनी उस जगह पहुंचे जहां खजाना छिपा था। यह एक पुरानी गुफा थी, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। टोनी ने वह पहेली हल की और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर गोलू और टोनी को सोने के सिक्के, जवाहरात और हीरे मिले। लेकिन गोलू ने खजाना लेने की बजाय सोचा, जंगल में हमारी असली दौलत तो हमारी दोस्ती है। यह खजाना सबके काम आना चाहिए, न कि सिर्फ मेरे। उसने खजाने को जंगल के सभी जानवरों में बांट दिया ताकि सभी खुश रह सकें। जंगल में अब सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और उन्होंने मिलकर नए रास्ते बनाए और खजाने को मिल बांटकर इस्तेमाल किया। गोलू की समझदारी और दोस्ती के कारण जंगल में फिर से शांति और खुशहाली छा गई। कहानी का नैतिक असली खजाना दौलत या सोना नहीं, बल्कि दोस्ती, समझदारी और एक दूसरे की मदद करना है।